गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ग्रे मैटर द इनिशियल स्पेसिस टू कम ऑन एरिया इज नोन एज पाइनियर कम्युनिटी। द वर्क ऑफ द पाइनियर कम्युनिटी इज टू मेक ग्राउंड रेडी फॉर द सब्सिक्वेंट सीरियल एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ओके, इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोलॉजिकल सबस्टेशन हो गया, जैसे कि ये फिगर में बता रहा है। ठीक है, ये फिगर है। पानियर स्पेसिस मॉजेस लाइकेन फंगस बैक्टीरिया रोडियो इंडोडर्म। फिर यहाँ पर छोटे छोटे पौधे हो गए, सीरियल ग्रास, हर्ब्स, सब्स, पाइन। फिर यहाँ पर बड़े बड़े हो गए, क्लाइमेक्स पे आ गया। ठीक है, लार्ज कम्प्लेक्स ट्रीज हो गए। तो ये जो जैसे जैसे इसका विकास होते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया। सर आर्थर टैंसले term the term ecology. The earliest community to colonize an area is known as pioneer community. The pioneer community is generally unicellular, simple, and helps in breaking the rocks for formation of soil, and they start ecological succession. ठीक है, मतलब कि पायनियर कम्युनिटी कैसे होगा कि बहुत पहले पहाड़ थे, पहाड़ को टूटा फूटा, फिर वो क्या हो गया, सॉइल बना तो फिर स्टार्ट क्या हो गया, छोटे छोटे जीव पैदा होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, उसका पायनियर कम्युनिटी हेल्प इन रिचिंग द सॉइल द न्यूट्रिएंट, इंक्रीजिंग द सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड कुशनिंग द ग्राउंड। मतलब कि अब छोटे छोटे जीव जो हो गए, तो वो उससे क्या हुआ, वो मिट्टी को थोड़ा, सॉइल को थोड़ा उपजाऊ बनाए, और क्या होता है, पानी से उसको ऑब्जर्व किए तो मिट्टी थोड़ी अच्छी हो गई। Pioneer community is replaced by the serial community, which through roots system which will enrich the soil by mixing the nutrients or humus to soil, increase the productivity and thus increase the complexity of food. मतलब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद थोड़ी बड़े बड़े पौधे जीव होने लगे, जिससे पौधे होने लगे, जिसके कारण क्या हो गया कि मिट्टी में जड़ आ गई और ज़्यादा उपजाऊ होने लगा। ठीक है, ecological niche starts developing, leading to final stage to succession in the form of stable, mature, long lasting and complex climate community. ecological niche क्या हो गया, डेवलपिंग होने लगा कि बड़े बड़े ट्रीज होने लगे, और क्या होता है, इकोलॉजी का क्लाइमेक्स आता है। ठीक है, ecological succession serial community, as the succession occurs, complexity in the terms of niche food wave, biodiversity keeps increasing। मतलब कि उसके बाद क्या होता है कि सक्सेशन होने के बाद और पौधे बनते और कम्प्लेक्सिटी आती है फूड वेब में। इन द ट्रॉपिक ऑफ माउंटेन्स सो सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन। मतलब कि जब ट्रॉपिकल रीजन पर हम जाते हैं तो हम देखते हैं क्या, सक्सेशन देखते हैं वेजिटेशन का। ठीक है, अब है कार्बन साइकिल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक, जियो इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, आयरन फर्टिलाइजेशन, बायोचार बरियल, पारोलाइसिस, यूरिया फर्टिलाइजेशन, ओशन फर्टिलाइजेशन और इंसरेशन। Urea fertilization is a process by which urea spread on the water bodies, which causes growth of seaweeds, which by the process of carbon dioxide. Theoretically, seaweeds can also be used third generation biofuels. Supplying enough biomethane is also known as renewable natural gas or RNG SNG. It is formed due to the anaerobic respiration. The major difference between natural gas and RNG is biomethane is carbon neutral or having net zero carbon footprint. Minangadi, the first carbon neutral panchayat, Kerala. Majuli, first carbon neutral district, और सिक्किम क्या first carbon negative state. Carva fix. Carva fix is the process that captures CO2 and other acidic gas in water and store it in the subsurface by drilling and injecting the CO2 along with pressurized water.
on the basaltic rocks. It is Iceland. India is exploring the possibility of introducing technology by utilizing the technology in coal fire plants. Clean coal technology enhanced oil recovery. It was said that in post-combustion carbon conference is organized by UNEP, ILO, IAEA, UNFCCC, organized by International Energy Agency, Greenhouse Gas Initiative. Internal Energy Agency is an autonomous intergovernmental organization established in the framework of OECD headquarters Paris. Reason of established oil crisis 1973. 3. Energy succession, economic development, environmental production. मेंबर्स कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऑल OECD मेंबर एक्सेप्ट आइसलैंड, इजराइल, चिली, स्लोवेनिया, चाइना, ब्राज़ील आर एसोसिएट मेंबर्स. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी. तो आज का लेक्चर, आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त हो रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं कल. थैंक यू.